Yes, philosophy and bhakti. In this, you will read about Shankaracharya. Shankaracharya was, आप कह सकते हो कि great philosopher. He was born in Kerala. Shankaracharya was great philosopher and he was born in Kerala in 8th century. He revived Hinduism. As I have told you, many people in those days, people left Hinduism due to various rituals or due to caste system as it was followed in Hinduism. So people, they left Hinduism in those days and they joined Buddhism, Jainism. Shankaracharya revived Hinduism. Shankaracharya was great philosopher, born in Kerala in 8th century, and he revived Hinduism. He advocated Advaita. He advocated Advaita. And no, Advaita means doctrine of oneness of the individual soul and the supreme God. Doctrine of oneness of individual soul and the supreme God. And he said that this world is full of Maya Jal. And how to get salvation, he told the path of knowledge. He taught the path of knowledge to attain salvation. Ramanuj, next is I'm going to repeat it again. Shankaracharya, born in Kerala in 8th century, and he revived Hinduism. He advocated Advaita. And he was on the view that this world is full of Maya Jal. He told people to get freedom from this, to attain salvation. He told the path of knowledge. So this is about Shankaracharya. Next is Ramanuj. Now listen about these saints. पेपर में किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है. Write about Shankaracharya, write about Ramanuj. So listen. Ramanuj, born in Tamil Nadu in 11th century. Born in Tamil Nadu in 11th century. And he was deeply influenced by Alvars, means he laid stress towards the आप कह सकते हो towards the devotion of Lord Vishnu. He was the devotee of Lord Vishnu because he was influenced by Alvars. So he was the devotee of Lord Vishnu, and he advocated Vashisht Advaita. Shankaracharya advocated Advaita. Ramanuj advocated Vashisht Advaita. And the idea of bhakti given by Ramanuj spread in North India. जबकि इनका बर्थ कहाँ पे हुआ? साउथ इंडिया में. हम खुद ही कहते हैं कि बर्थ कहाँ पे हुआ रामानुज का? तमिलनाडु. बर्थ कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु. And the idea of bhakti given by Ramanuj spread in North India. Listen about Ramanuj also. Ramanuj का बर्थ कब हुआ? In which century? 11th. कहाँ पे? तमिलनाडु. And he किससे impressed थे? Lord Vishnu. किसकी भक्ति पे इन्होंने importance दी? Lord Vishnu. He was on the view, if someone want to attain salvation, then he should show his true devotion towards Lord Vishnu. अगर मुक्ति पाना ना, तो कहते भगवान विष्णु के साथ अपनी ट्रू रिलेशनशिप बनाओ. तो he advocated Vashisht Advaita, and the idea of bhakti given by Ramanuj spread in North India. Next is about Basvans, Virashvaism.
Virashvaism was the movement started by Baswan and his companions. साथ में companions भी हैं, देखो कौन कौन है. Listen again. Virashvaism was movement started by Baswan और साथ में कंपेनियंस भी हैं, अलमा प्रभु एंड अक्का महादेवी. अब अक्का महादेवी जब आपने सुना ना तो एक बात दिमाग में आएगी कि वुमेन है. इट मींस ये लोग वुमेन को भी इक्वल राइट्स देने में विश्वास करते थे कि वुमेन मेंबर है. जहां अनटचेबल्स मेंबर थे मींस वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे ना, तो अब वुमेन मेंबर आ रही है तो इट मींस कि इक्वल इंपॉर्टेंस टू द वुमेन वाज आल्सो गिवन बाय देम ना. अब आपने इसको ऐसे लिखना है. फर्स्ट इज आप बताओगे भास्वंस विराशवाइज्म. आपको हो सकता है भास्वन वर्ड दे या आपको व्हाट डू नो अबाउट विराशवाइज्म दे दें. तो आपने कहना विराशवाइज्म वाज अ मूवमेंट स्टार्टेड बाय भास्वन एंड हिज कंपेनियंस अलमा प्रभु एंड अक्का महादेवी इन कर्नाटका. कहाँ पे? सॉरी, इन तमिलनाडु. कहाँ पे स्टार्ट हुई है मूवमेंट? कर्नाटका में थी, बट ये इम्प्रेस्ड हुए थे तमिलनाडु से. तमिलनाडु में जो आइडिया स्प्रेड हो रहे थे ना, दीज ये अक्का महादेवी या भास्वन, दे गॉट इम्प्रेस्ड बाय देम. दे स्टार्टेड वैष्णविज्म इन कर्नाटका. कहाँ पे स्टार्ट की? कर्नाटका. लिसन अगेन. आपको शंकराचार्य के लिए कौन सी स्टेट लर्न करनी है? केरला. आपको रामानुज के लिए कौन सी लर्न करनी है? तमिलनाडु. आपको भास्वन के लिए कर्नाटका. कर्नाटका. दे स्टार्टेड विराशवाइज्म इन कर्नाटका. मेंबर कौन है? अलमा प्रभु एंड अक्का महादेवी. भास्वन, अक्का महादेवी एंड अलमा प्रभु. विराशवाइज्म वाज स्टार्टेड बाय भास्वन, अक्का महादेवी एंड अलमा प्रभु. कहाँ पे? इन कर्नाटका. अब अपने आप आपके दिमाग में आएगा कि बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मे बी मेल और फीमेल. कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे मेल एंड फीमेल में. अक्का महादेवी तो मेंबर है, तो दे बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. नो, दे डिडंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेल एंड फीमेल. दे बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. दे डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे. ब्राह्मणिकल आइडियाज ऑफ कास्ट में बिलीव, क्योंकि ब्राह्मण्स believed in caste system. They were against the Brahminical ideas of caste system. ये caste system में believe नहीं करते थे. And they wanted to, they gave equal importance to women. They gave equal importance to women. Brahmins women को equal importance नहीं देते थे. And they were against ritualism. They did not believe in rituals. And they were against idol worship. मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे ये लोग. They did not believe in idol worship. मूर्ति पूजा, ये लोग मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे. Listen again. Virashvaism was a movement started in Karnataka by Baswan, अक्का महादेवी एंड अलमा प्रभु. पहले तो इतना बताना है, फिर आपको अपने आप दिमाग में आएगा कि वुमेन मेंबर है. इट मींस दे बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. दे गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू वुमेन. दे डिड नॉट बिलीव इन ब्राह्मणिकल आइडियाज ऑफ कास्ट सिस्टम एंड दे डिड नॉट बिलीव इन रिचुअल्स. दे वर अगेंस्ट आइडल वर्शिप. तो इतना सारा इनके बारे में लिखोगे, यू विल गेट मार्क्स. क्या आप विराशवाइज्म के बारे में लिखो. Who started Virashvaism? Where it was started? What do you know about their teachings? क्या बताया उन्होंने? किसमें बिलीव करते थे? इक्वालिटी में. रिचुअल्स के अगेंस्ट थे. हर एक में ये 2 पॉइंट्स चलेंगे. चाहे आप शंकराचार्य के बारे में लिखो, चाहे आप इसके रामानुज के बारे में लिखो, इक्वालिटी में बिलीव किया एंड रिचुअल्स के अगेंस्ट. रामानुज में आप, रामानुज के साथ आप पढ़ते हो कि विष्णु भगवान के बारे में, है ना, अलवर्स. ही वॉज इम्प्रेस्ड रामानुज. तो यहाँ पे आप आके पढ़ते हो ये जो बासवंस है, यहाँ पे आप वुमेन का भी पढ़ते हो. बासवंस believed in the equality of human beings. They believed in the equal rights for women also. They were against Brahminical ideas of caste system. They did not believe in rituals and they were against idol worship. मूर्ति पूजा के भी against थे ये लोग. इतने आ गया.
First is about Shankaracharya, then about Ramanuj, then about Bhaswan. Shankaracharya, okay, I am going to repeat it again, no problem. Yes, Shankaracharya. 8th century, बस सिंपल लाइंस सुन लो जो कि मन में बसा लो और लर्न. शंकराचार्य 8th century, बर्थ हुआ 8th century में केरला में. शंकराचार्य was born in Kerala in 8th century. फिर आप बताओगे he revived Hinduism. It's not given in the book, but we can write he revived Hinduism, and he believed in, he advocated Advaita. He advocated Advaita. He was on the view that this world is full of Mayajal, and he told people how to get rid of this Mayajal. He told the path of knowledge. He told the path of knowledge. He preached equality. बस इतना आपको याद रखना about Shankaracharya. हाँ, he was great philosopher of Kerala. Yes, it's right. Very good. ये तो आप सबके बारे में बताओगे ना. नेक्स्ट रामानुज, इसके बारे में भी आप यही बताओगे, ग्रेट फिलोसफर या ग्रेट सेंट ऑफ तमिलनाडु. ठीक है. बर्थ कब हुआ? 11th century. एंड किससे इंप्रेस थे? भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु. ही टॉट पीपल टू गेट टू अटेन salvation. Show your true devotion towards Lord Vishnu, as he was the devotee of Lord Vishnu. And he advocated Vasishtha Advaita. And the idea of bhakti given by Ramanuj spread in North India. Next, you have read about Virashvaism. It was a movement started in Karnataka. और किसने स्टार्ट की? बासवन, अलमा प्रभु एंड अक्का महादेवी. एंड अब आप बताओगे भास्वन या दे बिलीव्ड इन, क्योंकि 3 जने हैं. स्टार्टेड बाय भास्वन एंड हिज कंपेनियंस. अब आप यहाँ पे बताओगे दे बिलीव्ड इन इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. दे बिलीव्ड इन द इक्वल राइट्स फॉर women also, and they were against the Brahminical ideas of caste system. They didn't believe in caste system. They were against the Brahminical ideas of caste system, and they did not believe in rituals. They were against idol worship. मूर्ति पूजा के भी अगेंस्ट थे ये लोग. ठीक है. विराशवाइज्म मूर्ति पूजा के भी अगेंस्ट. अब आपके तीनों हो गए, शंकराचार्य, रामानुज, भास्वन. भास्वन कर्नाटका, शंकराचार्य केरला, रामानुज तमिलनाडु. पेपर में 1 मार्क में हम पूछ सकते हैं. शंकराचार्य वाज बोर्न इन, और नीचे ऑप्शंस में दिया हो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला. विच इज करेक्ट? केरला. नेक्स्ट इज पोएट्स ऑफ महाराष्ट्र. अब इनके बारे में सुनो. महाराष्ट्र में ना फ्रॉम 13th to 17th centuries, various saints became popular in Maharashtra. 13th to 17th century में महाराष्ट्र में बहुत से saints popular हुए थे. Out of these, अब मैं कुछ नाम बोलूंगी, learn. Out of these, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, जनेश्वर were popular. Listen again. From 13th to 17th centuries, various saints were popular in Maharashtra. Various saints came in Maharashtra. Out of these, Eknath, Tukaram, Namdev, Janeshwar were popular. They were devotees of Lord Vitthal. अब विठल भगवान विष्णु जी के ही अवतार को कहा गया. फॉर्म ऑफ भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु. दे वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विठल, मीन्स फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु. अब आपने यहाँ पे बताना है, यहाँ पे भी वुमेन है. यहाँ पे आप बताओगे वुमेन वर आल्सो, इनकी मेंबर्स थी, सेंट्स थी इनकी. कौन? सकुबाई एंड फैमिली ऑफ चोका मेला.
एंड फैमिली ऑफ चोकामेला अनटचेबल्स वर द मेंबर्स ऑफ, और आपने साथ में बताना है माहिर कास्ट, ये सब अनटचेबल्स थे, माहिर कास्ट के थे, सक्कूबाई, चोकामेला, फैमिली ऑफ चोकामेला। तो ये आप बताओगे अनटचेबल्स या माहिर कास्ट के लोग थे, ठीक है। फिर आपने बताना है कि ये जो सेंट्स थे इन्होंने क्या क्या आइडियाज दिए। नो लिसन, प्रीस्ट इक्वालिटी, अब यहाँ पे वुमेन आ गई, सक्कूबाई है, सक्कूबाई है ना, तो इट मीन्स दे प्रीस्ट इक्वालिटी, बिलीव्ड इन इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, क्योंकि सक्कूबाई नहीं है यहाँ पे, तो इस वे से आप बताओगे बिलीव्ड इन द इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। और मैंने बोला कि माहिर कास्ट के लोग इनके मेंबर थे, ये माहिर कास्ट के थे, तो अपने आप बताओ ये लोग कास्ट सिस्टम में बिलीव करेंगे? तो खुद ही अनटचेबल्स हैं, क्या ये बिलीव करेंगे? नो, दे बिलीव्ड इन इक्वालिटी, they did not believe in caste system, they gave importance to equal rights for both men and women। और साथ में इन्होंने और क्या रिजेक्ट किया? रिनंसिएशन को, दे रिजेक्टेड रिनंसिएशन, कि अपना घर बार छोड़ के वनों में नहीं चले जाना। आप फैमिली, ये कहते थे लिव विद फैमिली, फैमिली में रहो, भगवान को फैमिली में रह के याद करो, एंड अपनी डेली रूटीन के जो भी काम है वो करो, अपनी अर्निंग्स, चाहे आप खेतों में काम करते हो, चाहे आप लेबरर्स हो, अपना काम करो, बट फैमिली छोड़ के जंगलों में नहीं जाओ, फैमिली के साथ रह के भगवान को याद करो। जैसे गुरु नानक देव जी ने बोला कि घर बार नहीं छोड़ के जाना, घर में रह के अपने बच्चों की भी परवरिश करो और भगवान को भी याद करो, घर के सारे काम भी करो जो भी है। तो दे रिजेक्टेड रिनंसिएशन, इन्होंने रिनंसिएशन को रिजेक्ट किया, एंड दे taught people to live with family and to do household work or to earn your livelihood, जो भी था इन्होंने इस चीजों को इंपॉर्टेंस दी। एंड इन्होंने कहा टू शेयर द पेन्स ऑफ अदर्स, दे आस्क पीपल टू शेयर द पेन्स ऑफ अदर्स, दूसरों के दुख को बांटो, दूसरों का दुख कम करो, उनके दुख को बांट लो। अब यहाँ पे मैं एक नाम बोलती हूँ, नरसी मेहता, ही वाज सेंट ऑफ गुजरात, ही सेड दैट ही वाज वैष्णव, उसने कहा वो वैष्णव है, वैष्णव समझते हो, वेजिटेरियन, गुजरात वैसे भी कहते हैं लैंड ऑफ वेजिटेरियन, तो सेम, तो उसने कहा कि ही वाज वैष्णव एंड ही अंडरस्टूड द पेन्स ऑफ अदर्स, उसने कहा मैं दूसरों के दर्द को समझता हूँ, तो क्योंकि उसने खुद को क्या बोला? वैष्णव, एंड ही सेड दैट ही अंडरस्टूड द पेन्स ऑफ अदर्स। अब मैं महाराष्ट्र के सेंट्स दोबारा बोलती हूँ, लिसन अगेन, फ्रॉम 13 to 17 centuries various saints came in Maharashtra, out of these मैंने नाम बोले थे, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, जनेश्वर were the popular, they worshipped Lord Vitthal, they were the devotees of Lord Vitthal, form of Lord Vishnu. Sakkubai and family of Chokamilla were also their members, and they were from Mahir caste, वो माहिर कास्ट के थे। These saints, अब बताओ अब ये क्या क्या रिजेक्ट किया? दे रिजेक्टेड रिचुअलिज्म, इन्होंने रिचुअल्स में बिलीव नहीं किया। देखो हर कोई रिचुअल्स में बिलीव नहीं कर रहा, ये पॉइंट्स तो दो कॉमन हो गए ना, दे प्रीस्ट इक्वालिटी, दे वर अगेंस्ट रिचुअलिज्म। अगर आपको शंकराचार्य है तो ही प्रीस्ट इक्वालिटी, ही वाज अगेंस्ट रिचुअलिज्म। बासवंश आए तो आपको वो तीन जने हैं तो दे हो जाएगा, रामानुज आए तो ही लिख के, ठीक है, तो ये सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र आए तो दे लिख के, क्योंकि ये कितने नाम है, ये इतना तो पता चल ही जाएगा, एक जने के साथ ही और ज्यादा जनों के साथ दे, ये ना जय शंकराचार्य के साथ दे, तो इस वे से करना है, ठीक है। हर एक के पॉइंट्स कुछ कॉमन है, प्रीस्ट इक्वालिटी, अगेंस्ट रिचुअलिज्म, जहां पे वुमेन का नाम पढ़ते हो ना वहां पे वुमेन का भी पॉइंट बना दो। दो जगह तो आपने पढ़ा ही है वुमेन का नाम, बासवन के साथ पढ़ा और दूसरा आपने किसके साथ पढ़ा? सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र के साथ पढ़ा। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट बना सकते हो ना, गिव इंपॉर्टेंस टू द राइट्स ऑफ वुमेन, है ना, वुमेन के राइट्स को इंपॉर्टेंस दी ना, इक्वल ट्रीटमेंट किया।
एंड साथ में अब सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र के लिए एक बात और याद रखो, दे रिजेक्टेड रिनंसिएशन। इन्होंने कहा लिव विद फैमिली, अर्न लाइवलीहुड, डू योर हाउस होल्ड वर्क, टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। इन्होंने कहा अपने बच्चों की केयर करो, फैमिली के साथ रहो, अर्निंग जो भी आपकी लाइवलीहुड वो सब अपना काम करो, आप छोड़ के नहीं जाओ उनको, उनके साथ रह के भगवान को याद करो। इन्होंने ये वाला रास्ता बताया। तो इस वे से आप बताओगे। और साथ में कहा शेयर द पेन्स ऑफ अदर्स, टू शेयर द पेन्स ऑफ अदर्स। अब who was Narsi Mehta? He was saint of Gujarat and he said that he was Vaishnav. उसने कहा वो वैष्णव है, नॉन वेजिटेरियन है, वैष्णव है, वेजिटेरियन है, and he understood the pains of others. He understood the pains of others. This is about Narsi Mehta. Narsi Mehta. So next is about Nathpanthis, Siddhas and Yogis. तो नाथपंथीस, सिद्धास एंड योगीज, इसको आज नहीं हम करते, पहले हम एक बार प्रीवियस जो आज करवाया, क्योंकि इतना ज्यादा आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे सबको लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल अलवर्स नायनास, आज मैंने यहीं से स्टार्ट किया, अलवर्स एंड नायनास। तो अलवर्स जो थे डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, नायनार्स वर द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिव, एंड मेंबर्स जो थे इनमें लो कास्ट के थे, यू नो इट वेल। 63 मैंने बोला था कि मेंबर्स जो थे ना, लो नायनार्स जो थे ना, दे बिलोंग्ड टू लो कास्ट। 12 मेंबर्स इन अलवर्स दे बिलोंग्ड टू लो कास्ट। इट मीन्स अगर मेंबर्स ही लो कास्ट के हैं तो क्या ये कास्ट सिस्टम में बिलीव करेंगे? पॉइंट्स तो बन गए। किसको प्रीच किया? इक्वालिटी। किसके अगेंस्ट आवाज उठाई? कास्ट सिस्टम। ठीक है, बिलीव्ड इन इक्वालिटी, प्रीच्ड इक्वालिटी। एंड एक पॉइंट मैंने सबका कॉमन बताया, दे वर अगेंस्ट रिचुअल्स, दे वर अगेंस्ट रिचुअल्स। अब रिचुअल्स के जो अगेंस्ट होएगा वो सिंपल लाइफ में बिलीव करेगा ना, है ना। दे गेव इंपॉर्टेंस टू सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ को इंपॉर्टेंस दी। तो इस वे से आप कह सकते हो, आपके अपने आप बन जाने आंसर्स, आपको कहीं से क्रैम नहीं करने। नेक्स्ट यू हैव रेड अबाउट शंकराचार्य। शंकराचार्य के बारे में पढ़ा ना, बर्थ कहाँ पे हुआ? केरला। कब हुआ? 8th सेंचुरी। एंड ही वाज ग्रेट फिलोसफर एंड ही एडवोकेटेड अद्वैता। और साथ में नेक्स्ट आपने किसके बारे में पढ़ा? रामानुज। बर्थ कहाँ पे हुआ? कर्नाटका, सॉरी तमिलनाडु। बर्थ कहाँ पे हुआ? सेंचुरी 11th century, and he was influenced by Alvars, so means he was the devotee of Lord, and he taught people, if you want to get freedom, if you want to attain salvation, then show your true devotion towards Lord Vishnu. Who said this world is full of Mayajal? Shankaracharya. Who said this world is full of Mayajal? शंकराचार्य। ऐसे वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट फिर आपने पढ़ा भास्वन, विराश्वइज्म। हु एडवोकेटेड वशिष्ठ अद्वैता? रामानुज। हु एडवोकेटेड अद्वैता? शंकराचार्य। ये याद रखने, 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। एंड नेक्स्ट इज विराश्वइज्म। इट वाज, दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन कर्नाटका बाय बासवन एंड हिज कंपेनियंस अलमा प्रभु एंड अक्का महादेवी। अब अपने आप टीचिंग्स बन गई, वुमेन है तो इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, वुमेन को इंपॉर्टेंस दी। और साथ में क्या बोला? किसके अगेंस्ट आवाज उठाई? रिचुअल्स, आइडल वर्शिप के भी अगेंस्ट, है ना। यही आएगा ना सब कुछ, इस वे से आप बता दोगे। इक्वालिटी, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, वुमेन को इंपॉर्टेंस दी, तो इस वे से आप इनके बारे में बताओगे। नेक्स्ट आगे सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, 13 to 17 सेंचुरीज। कितने ही सेंट्स आए, उनमें से जो पॉपुलर थे हमने उनके नाम बताए। फिर हमने कहा ये किसके डिवोटीज थे? लॉर्ड विठल। विठल किसकी फॉर्म को बोला गया? भगवान विष्णु। तो इस वे से आप ये वाला सारा लर्न करोगे। रिनंसिएशन इनका याद रखना, रिजेक्टेड रिनंसिएशन, फैमिली में रह के भगवान को याद करो, और बाकी टीचिंग सेम है।
फिर आपको एक नरसिंह मेहता याद करना है, सेंट ऑफ गुजरात। उसने कहा, क्या कहा कि वो कौन है, वैष्णव, और क्या कहा कि he understood the pains of others. So this is about the different saints. So students, आपने क्या करना है, इनके बारे में अपना पहले आज एक बार इनकी रीडिंग कर लेना, ताकि आपको इनके बारे में अगर कोई भी टॉपिक आए तो आपको प्रॉब्लम ना